Hello everyone, good morning my students. Yes beta, in our previous video we have done the topic preposition of place. Okay, today we are going to do the another part of preposition. It is preposition of time. Time means समय. Okay, what is preposition of time? It shows the relationship of time between the noun to the other part of a sentence. Preposition of time tell us about the exact time when an action happen. Okay? Preposition of time हमें बताती है कि कब कोई काम happen हो रहा है, मीन्स किस टाइम कोई काम हो रहा है. It shows the relationship of time. ये जो टाइम होता है उसकी रिलेशनशिप बनाती है बिटवीन द नाउन. जो नाउन होता है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इट शोज द रिलेशनशिप. ये उसके साथ रिलेशनशिप को शो करती है. व्हेन इज अ नाउन डूइंग अ वर्क ऑन विच टाइम द वर्क इज हैपनिंग, कि हमारा काम किस टाइम हो रहा है. ओके, ये दिस प्रेपोजिशन टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट टाइम. ये हमें टाइम पीरियड के बारे में बताती है. क्लियर टू ऑल? Firstly, let's start with the rules. These are the prepositions of time we are using in our class. At, on, in, for, since, still, from. Okay. At preposition we use in the preposition of place. ये हमारी at preposition हम preposition of place में भी use कर चुके हैं. Now we are using it in our preposition of time. Firstly, start with at. We use at when we talk about time. हम at preposition तब use करते हैं when we are talking about exact time. हम किसी exact time की बात करते हैं. Like at 7 o'clock. Okay? At 7 o'clock. यहाँ पे किसी exact timing की बात हो रही कि 7 बजे. There we are talking about the exact time, 7 o'clock. We go to school at 7 o'clock. हम स्कूल 7 बजे जाते हैं. There we are talking about the exact time period, कि 7 o'clock time दिया गया है. Clear to all? Next one is we use on with dates and day. Preposition of place में भी हमने use किया है ना उनको. The pen is on the book. Pen book के ऊपर है. Clear to all? Now we use on preposition in preposition of time also. We use on with dates and days. Always remember. देखो हम on preposition वहाँ पर use करेंगे. There we are talking about the dates. Like on 5th August. Clear to all? On Sunday. Sunday. जितने हमारे days of week है ना, on Sunday, we go to play on Sunday, we go to movie on Tuesday. Clear to all? उनसे पहले हमारे days होंगे. These are our days. Clear to all? And these are our dates. ये हमारी dates हैं. इन सबसे पहले हम preposition of time on use करेंगे. Clear to all? We use in preposition. These are the unique rules. ये हमारे main rules हैं. इसी के according आप preposition of time को fill करोगे. We use in with weeks, months and years. जहां पर weeks के बारे में दिया गया है, ओके, और जहां पर months के बारे में दिया गया है, और जहां पे years को डिस्कस किया गया. Clear to all? Like firstly start with the month. There are 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July. अब ये जितने भी हमारे मंथ्स नेम है, लाइक माई बर्थडे इज इन मार्च. सॉरी, माई बर्थडे इज इन मार्च. अब ये देखो, मार्च इज अ मंथ नेम, और उससे पहले हमने क्या यूज किया प्रेपोजिशन? वी यूज इन. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज ईयर्स. आई वॉज बोर्न इन 2005. इन 2005. मेरा जन्म 2005 में हुआ है. इन prepositions. Understand everyone?
ओके बेटा, यहां पर इनके साथ हमारी इन प्रेपोजिशन यूज होगी. नेक्स्ट वन इज वी कैन यूज फ्रॉम टू. दीज आर ऑल्सो प्रेपोजिशन, ये दोनों साथ में यूज हो रही हैं. वी कैन यूज फ्रॉम टू शो द बिगनिंग एंड एंडिंग एंड ऑफ एन एक्शन. फ्रॉम से टू तक. क्लियर टू ऑल. फ्रॉम टू हमारी प्रेपोजिशन वहां पर यूज होगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगनिंग टाइम एंड द एंडिंग टाइम, जहां पर हम बिगनिंग टाइम और एंडिंग टाइम की बात कर रहे हैं. लाइक दिस, शी यूजुअली स्टेज इन बेड फ्रॉम 8 बजे से लेके टू 8:30. फ्रॉम से टू तक. क्लियर टू ऑल. शी हैड अ स्पेशल ब्रेकफास्ट फ्रॉम, उसका स्पेशल ब्रेकफास्ट है फ्रॉम से टू 8:30 टू 9:30. क्लियर टू ऑल. ये दोनों preposition हमारे बिगिनिंग पॉइंट, इट इज अ बिगिनिंग पॉइंट एंड इट इज एंडिंग पॉइंट. क्लियर टू ऑल बेटा. क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स. अंडरस्टैंड एवरीवन. अब आप इन रूल्स को ना एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, कि हमारी एट, ऑन, इन, फ्रॉम, टू prepositions कहां पर यूज होती है. लेट्स मूव ऑन विद द एक्सरसाइज. आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज complete these sentences with in or at. First example is it gets very hot in Hyderabad in summer. It gets very hot, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है in summer. Listen, जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं समर, विंटर, ऑटम, इन सब के साथ भी आप इन प्रेपोजिशन यूज करोगे. ठीक है. इन समर, इन विंटर, जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं ना, हम उनके साथ भी इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट वन इज माई ब्रदर आदित्य वॉज बोर्न. हियर द एग्जैक्ट टाइम गिवन. यहां पर एग्जैक्ट टाइम दिया गया ना एग्जैक्ट टाइम. और मैंने एग्जैक्ट टाइम के लिए बोला था कि आप क्या प्रेपोजिशन यूज करोगे. माई ब्रदर आदित्य वॉज बोर्न एट 7:45 AM ऑन 2 October. 2 October इज अ डेट. इट इज डेट. ये डेट दी गई है ना, तो इसके लिए हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे. अब आप ये देखो, यहां पे फाइंड आउट करोगे डेट्स. डेट्स के साथ वी यूज ऑन प्रेपोजिशन. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट वन इज माई फादर डज नॉट लाइक ड्राइविंग एट 9. किसी एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात की गई है, किसी एग्जैक्ट डे पार्ट की बात की गई है. इट इज अ पार्ट ऑफ डे. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डे. ठीक है ना. तो किसी एग्जैक्ट पार्ट ऑफ डे की बात की गई है, कि डे टाइमिंग के एक पार्ट की बात की गई है, देयर इज ऑल्सो यूज एट प्रेपोजिशन. नेक्स्ट वन इज माई बर्थडे इज इन अप्रैल. मंथ नेम दिया गया है, ठीक है ना, मंथ दिया गया है, तो वी यूज इन प्रेपोजिशन. नेक्स्ट वन, व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे. डे इज गिवन, और डे के साथ मैंने आपको बताया था ऑन प्रेपोजिशन यूज होगी. आई वेक अप एवरी डे एट, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, वी यूज एट प्रेपोजिशन. स्कूल बिगिंस फ्रॉम 1 जुलाई या ऑन 1 जुलाई, आप दोनों यूज कर सकते हो. ठीक है ना. डेट दी गई है. आई हैव माई डांस क्लास एट एग्जैक्ट टाइम 6 PM ऑन सैटरडे. डे गिवन है. क्लियर टू ऑल. एक्सरसाइज 2 इज सेइंग राइट 6 sentences about Gargi spends her Sundays using from to. यूज द क्लूज गिवन. ठीक है, ये आपको क्लूज दी गई हैं, आपको इनको यूज करते हुए टू बिगनिंग एंड एंडिंग टाइम पीरियड दिया गया, आपको फ्रॉम और टू लगाकर इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. लाइक नंबर 1 इज गिवन टू यू, मैं ये पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूं. नंबर 2, शी हैड अ स्पेशल ब्रेकफास्ट. शी हैज अ स्पेशल ब्रेकफास्ट फ्रॉम 8:30 टू 9:30 AM. ठीक है, आप यहाँ फ्रॉम और टू यूज करके इनको कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये कंप्लीट एक फ्रॉम और टू प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. एक एक्सरसाइज 2
ending starting point and the ending point. Next one is I watches TV from 9:30 to 10 a.m. I play with her friend. Sorry, she plays with her friends from 10 to 11 a.m. Clear to all? आप यहाँ पर ये sentences को complete करोगे. This is our exercise 3. Complete these sentences with preposition from the box. ये अब आप अपने आप करोगे. ओके, वेरी इजी टॉपिक. आप सेंटेंस को समझकर आपको यहाँ पर देखना है कि किस चीज की बात हो रही है. एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है. ठीक है, सीजन्स की बात हो रही है. उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 3 को फिल करोगे. Then I will share the key of this exercise. Okay, beta? It is enough for today. And complete your topic preposition of time and also revise it. Thank you.